Hello everyone, welcome back to our channel that is problem solving. Today we will be solving some numericals based on the topic work done by a variable force. In my previous lecture, I have discussed what should be our approach in order to solve a numerical based on the topic work done by a variable force. अगर हम लोगों का जो अप्लाइड फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम के साथ चेंज होता जा रहा है तो उस टाइप वेरिएबल फोर्स के वजह से जो वर्कडन होगा उस वर्कडन को कैलकुलेट करने के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए और क्या क्या फॉर्मूला होगा, वो सभी हम लोग पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज की लेक्चर में हम लोग इस टॉपिक के ऊपर 3 to 4 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, 3 से 4 न्यूमेरिकल अप्रॉक्स सॉल्व करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। सो लेट्स सी व्हाट्स द न्यूमेरिकल्स आर देयर। सो दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल, this is problem number 1 not 2, this will be problem number 1. It is saying that a particle moves under the effect of a force F equals to cx. A particle moves under the effect of a force F equals to cx from x equals to 0 to x equals to x1. This is not that type, this is x suffix 1, x equals to x suffix 1, that is x equals to x1. The work done in the process is, it is saying that a force F equals to cx. okay, let me tell you one thing. तुम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले देखो कि फोर्स किसका फंक्शन है, डिस्प्लेसमेंट का और टाइम का। मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्या बोला था कि आइदर फोर्स में बी अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में बी अ फंक्शन ऑफ टाइम। यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि फोर्स एक डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है। हियर द अप्लाइड फोर्स F, here the applied force F is a function of x, that is applied force is a function of displacement. We can see that because x is what, x is displacement, x equals to 0 to x equals to 1 means the initial position of the object will be x equals to 0 and the final position of the object will be x equals to x1. So the applied force is F. C is nothing but a constant. Here C क्या है, C एक constant है and x क्या है, displacement है और force displacement के साथ change होता जा रहा है. So here we can say that F is nothing but a function of x. दो कंडीशन हो सकता है, either force is a function of displacement और force is a function of time. अगर force time के साथ change होता है then हम लोग उसको कहेंगे this variable force is a function of time. अगर displacement के साथ change होता है तो हम लोग कहेंगे कि force is a function of displacement. So here in this numerical F is equals to cx, that's why F is a function of x. सो टोटल डिस्प्लेसमेंट, इस टाइप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्या अप्रोच होना चाहिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कुछ वक्त के लिए x मान लेते हैं बिकॉज डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक हो रहा है, x equals to 0 to x equals to x1. So initial position of the object will be what, initial position of the object will be x equals to 0 and the final position of the object will be x equals to x1. So total displacement को हम लोग x वेरिएबल के साथ डिनोट कर सकते हैं, द टोटल डिस्प्लेसमेंट में बी डिनोटेड एज अ वेरिएबल x. तो थ्रू आउट द मोशन, थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ x, द फोर्स इज नॉट अ कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स का मैग्नीट्यूड x के साथ वेरी होता जा रहा है. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दिस टोटल डिस्प्लेसमेंट x विल बी डिवाइडेड इनटू इनफाइनाइटली स्मॉल पार्ट. The total displacement will be divided into very infinitely small parts and the one part is called as what, dx, and the one small part, small means very infinitely small, one small part will be called as what, dx, that is differentiation of x, that is what, differentiation of x dx. सो यहाँ पे जो छोटा डिस्प्लेसमेंट dx हो रहा है उस dx को, dx के साथ हम लोग क्या मान सकते हैं, dx के लिए हम लोग क्या मान सकते हैं, इस छोटा डिस्प्लेसमेंट dx के लिए हम लोग फोर्स को अप्रोक्स कांस्टेंट मान सकते हैं. फॉर द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx वी कैन एज्यूम द फोर्स एज कांस्टेंट. dx के लिए हम लोग लगभग फोर्स को कांस्टेंट मान सकते हैं, थ्रू आउट द मोशन फोर्स कांस्टेंट नहीं है बट छोटा डिस्प्लेसमेंट dx के लिए हम लोग कांस्टेंट मान सकते हैं. तो यहाँ पे हम लोगों का जो वर्क डन होगा ड्यू टू द फोर्स F, अगर डिस्प्लेसमेंट dx होता है देन वी कैन राइट dw इक्वल्स टू
F into dx. dW equals to F into dx. Why? Because we know that work done is nothing but the product of force and displacement. Work is nothing but product and displacement, that is प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दैट इज व्हाट W इक्वल्स टू F into S. ये कब अप्लाई होगा? जब फोर्स हम लोगों का क्या है, कांस्टेंट है. तो यहाँ पे देखो फोर्स कांस्टेंट नहीं है थ्रू आउट मोशन, बट dx के लिए तो फोर्स कांस्टेंट है ना, दैट्स व्हाई वी आर अप्लाइंग दिस फार्मूला, दैट इज dW इक्वल्स टू F into dx. तो यहाँ पे अगर हम लोग dW को इंटीग्रेट करेंगे, dW को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, देन वी विल गेट व्हाट, W. अगर यहाँ पे dW को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे देन हम लोगों को वर्क मिलेगा. So integration f dx. Okay, so let me put the upper limit and lower limit of the integration. वेरिएबल का अपर लिमिट और लोअर लिमिट हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा. सो dw जब ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन मींस x इक्वल्स टू 0 में था तो वर्क डन कुछ हो नहीं रहा था. सो लोअर लिमिट ऑफ द वेरिएबल w विल बी व्हाट, 0, एंड द अपर लिमिट लेट्स सपोज w. मान लेते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट x के लिए जो वर्क डन होगा वो w होगा. सो द लोअर लिमिट विल बी व्हाट, लोअर लिमिट विल बी 0 एंड अपर लोअर लिमिट विल बी व्हाट, दिस लोअर लिमिट विल बी 0 एंड अपर लिमिट विल बी w. यहाँ पे देखो f equals to what, in the numerical it is given that f equals to cx. So instead of writing f we can put the value here, that is cx dx. x जो वेरिएबल है वो उसका लोअर लिमिट कितना है, मतलब x का इनिशियल पोजीशन कितना है, 0. सो द लोअर लिमिट ऑफ द वेरिएबल x इज विल बी 0 एंड द अपर लिमिट विल बी व्हाट, x इक्वल्स टू x1. अपर लिमिट विल बी व्हाट, x1. सो अगर dw को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना मिलेगा, टोटल वर्क डन मिलेगा, दैट विल बी w. c इज व्हाट, c इज कांस्टेंट, तो ये इंटीग्रेशन का बाहर जाएगा. और x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर बाई 2. x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर अपॉन 2, x स्क्वायर बाई 2. लोअर लिमिट इज 0 and here the upper limit is what, x1. So the ultimate result will be, that is the ultimate work done by the force F equals to cx will be half c x1 square. सो एक बात कि ये सब न्यूमेरिकल जो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब उस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, तो तुम लोगों को इंटीग्रेशन आना चाहिए. यू नीड टू नो इंटीग्रेशन इन ऑर्डर टू सॉल्व सच अ न्यूमेरिकल दैट इज बेस्ड ऑन वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स. अगर वेरिएबल फोर्स के ऊपर वर्क डन, मतलब वर्क डन जो वेरिएबल फोर्स के वजह से होता है, उस वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए तुम लोगों को वर्क डन आना चाहिए, सॉरी वर्क डन बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन आना चाहिए. अगर इंटीग्रेशन नहीं आएगा तो ये सब प्रॉब्लम तुम लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे. यहाँ पे क्या किया हो कि यहाँ पे जो c है वो कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग आउटसाइड फ्रॉम द इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन में बाहर क्यों लिया, क्योंकि c क्या है, कांस्टेंट है. x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x स्क्वायर बाई 2. लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज x1. तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट को पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट करेंगे, that's why we are getting what, w equals to half c x1 square. So the ultimate result will be option number B, half c x1 square. So I hope this numerical is clear for you. So अप्रोच क्या होना चाहिए, फर्स्ट थिंग हम लोगों को देखना पड़ेगा कि अप्लाइड फोर्स टाइम का फंक्शन है कि डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है. अगर ये तुम आइडेंटिफाई कर लोगे देन तुम क्या करोगे, अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है देन तुम टोटल डिस्प्लेसमेंट x को छोटा छोटा भाग में डिवाइड कर लोगे. टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी डिवाइडेड इनटू इनफाइनाइट स्मॉल पार्ट्स. वो करने के बाद तुम लोग छोटा डिस्प्लेसमेंट dx के लिए फोर्स को लगभग कांस्टेंट मान सकते हो. देन यू विल अप्लाई व्हाट, देन यू कैन अप्लाई dw इक्वल्स टू f dx. देन तुम इस फंक्शन को क्या, इस dw को इंटीग्रेट करो और f dx को इंटीग्रेट करो तो अल्टीमेट रिजल्ट तुम लोगों को मिल जाएगा. So let's see the next problem. Problem number 2. This is problem number 2. The work done by an applied variable force. So here it is mentioned that the force is variable force. तो हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि ये वेरिएबल फोर्स डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है कि टाइम का फंक्शन है. The work done by an applied variable force F equals to x plus x cube. This is x cube.
from x equals to 0 to x equals to 2 meter. That means the initial position of the object is 0 meter and the final position of the object is 2 meter, where x is displacement is. मतलब तुम लोगों को यहाँ पे जो x equals to 0 से x equals to 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस फोर्स F equals to x plus एक्सेस क्यू के वजह से, तो कितना वर्क डन होगा वो तुम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो कैसे करेंगे? Here we can see the applied force F is a function of x and is given that F equals to x plus एक्सेस क्यू. x क्या है? डिस्प्लेसमेंट है. तो लेट सपोज द टोटल डिस्प्लेसमेंट इज x. कुछ वक्त के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट, कुछ वक्त नहीं, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट इज x ना. Total displacement is x and the initial position of the object, that is when the at the starting x will be what? At the starting x will be 0 and at the final position x will be 2. इनिशियल पोजीशन में x क्या, इसका वैल्यू क्या है? 0 है और फाइनल पोजीशन में क्या है? 2 है. तो थ्रू आउट द मोशन, मतलब थ्रू आउट x के लिए तो फोर्स कांस्टेंट नहीं है ना. तो दिस टोटल डिस्प्लेसमेंट x will be divided into very infinitely small parts and the one part will be called as what? dx. इस टोटल डिस्प्लेसमेंट x को हम लोग क्या करेंगे? इनफाइनाइटली स्मॉल पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो हम लोगों को डिफरेंशिएशन ऑफ x मिलेगा, दैट इज dx. तो इस छोटा dx के लिए, मतलब छोटा डिस्प्लेसमेंट dx के लिए फोर्स को लगभग कांस्टेंट मान सकते हैं. सिमिलर प्रॉब्लम है प्रीवियस का, सिमिलर प्रॉब्लम. dw इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? फोर्स इनटू dx. फोर्स इनटू dx. यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? dw को इंटीग्रेट करना पड़ेगा. dw को क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना. इंटीग्रेशन ऑफ dw विल बी इक्वल्स टू, ओके, यहाँ पे फोर्स के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? इंस्टेड ऑफ फोर्स वी कैन राइट x प्लस एक्सेस क्यू, बिकॉज फोर्स इज गिवन व्हाट? फोर्स इज गिवन दैट, सॉरी, फोर्स इज गिवन दैट x प्लस एक्सेस क्यू. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग f वी कैन राइट f प्लस x प्लस एक्सेस क्यू dx. तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का लोअर dw है उसका लोअर लिमिट कितना होगा? वो इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट होगा 0, बिकॉज इनिशियल पोजीशन, मतलब जब ऑब्जेक्ट x इक्वल्स टू 0 में था तब वर्क डन कितना होगा? 0, और फाइनल पोजीशन में वर्क डन कितना होगा? w. और x का इनिशियल पोजीशन कितना है? 0, और फाइनल पोजीशन क्या है? x इक्वल्स टू 2 मीटर. x 0 से लेकर 2 तक वेरी हो रहा है ना, तो लोअर लिमिट विल बी 0 एंड अपर लिमिट विल बी 2. अपर लिमिट विल बी व्हाट? 2. एज सिंपल एज दैट. तो अगर dw को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना मिलेगा? w मिलेगा. ओके, यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, दैट विल बी x dx. इंटीग्रेशन आना चाहिए तुम लोगों को अगर इस टाइप का न्यूमेरिकल तुम लोगों को सॉल्व करना है. x dx, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 2 प्लस इंटीग्रेशन, फिर इसको लेना होगा एक्सेस क्यू dx, एक्सेस क्यूब dx, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 2. x dx का इंटीग्रेशन कितना होगा? एक्स स्क्वायर बाई 2. इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx will be x to the power n plus 1 divided by n plus 1. So it will be x square by 2 by 2. x dx का इंटीग्रेशन कितना होगा? x square by 2, 0 to 2, ये 2 है, ठीक है, 1 नहीं है, x square by 2 प्लस एक्सेस क्यू dx का इंटीग्रेशन कितना होगा? x to the power 4 by 4. x to the power n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x to the power n plus 1 divided by n plus 1. तो ये हो जाएगा x to the power 4 divided by 4. लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज 2. ओके, सो अल्टीमेट रिजल्ट विल बी व्हाट? इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ना. सो 2 to the 4 by 2 मींस 2 एंड माइनस में लोअर लिमिट में 0 है तो अल्टीमेट रिजल्ट 0 हो जाएगा. 2 प्लस, तो इस पार्ट को अगर कैलकुलेट करें, सिर्फ इस पार्ट को अगर कैलकुलेट करेंगे तो 2 मिलेगा. 2 to the 4 by 2, हाँ 2 मिलेगा. और इस पार्ट को अगर कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा 2 to the power 4 मींस 16 by 4, दैट मींस 4. और माइनस अपर लिमिट क्या होता है? जब मैग्नीट्यूड पुट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं,
तो लोअर लिमिट में तो जीरो है ना, तो अल्टीमेट वो जीरो हो जाएगा माइनस वाला पार्ट। सो अल्टीमेट द रिजल्ट विल गेट व्हाट, विल गेट 6 जूल। So work done will be what, 6 joule, because displacement is in SI unit. So result will be the work done by an applied force, variable force F equals to x plus xs cube from x equals to 0 meter to x equals to 2 meter, where x is displacement is 6 joule. इस वेरिएबल फोर्स की वजह से जो वर्क डन हो रहा है वो कितना हो रहा है, 6 जूल। आई होप दिस न्यूमेरिकल इज क्लियर फॉर यू। सो लेट्स सी द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो एक बार फिर बोल रहा हूँ कि अगर इस टाइप का न्यूमेरिकल तुम लोगों को सॉल्व करना है तो क्या करोगे, फर्स्ट आइडेंटिफाई करो कि फोर्स किसका फंक्शन है, वेरिएबल किसका वेरिएबल है, डिस्प्लेसमेंट का कि टाइम का। अगर डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है तो इस वाले ये वाला अप्रोच कर लगाना, और अगर टाइम का फंक्शन है तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हम लोग देखेंगे कि कैसे टाइम के फंक्शन में अगर कोई फोर्स आता है तो वो कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ओके, लेट्स सी problem number 3, the force F equals to 2t square. So here you can see the force is a function of time, where t is what, t is time. Force is a function of what, here in previous two problem force is a function of what, force is a function of displacement, but here force is not a function of displacement, force is a function of what, time. And in the numerical it is given that F equals to 2t square, F equals to 2t square. First we have to identify this one. First we need to identify this one, that force a function of variable, force a function of displacement, or the force a function of time. तो हम लोग ये आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि here force is a function of time. The force F equals to 2t square is applied on the object 2 kg block. So object का जो mass है वो कितना है, 2 kg. Then find out the work done by this force in 2 seconds. Initially at time t goes to 0, block is at rest. Okay, तो पहला अप्रोच तो हो गया ये कि हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि ये फोर्स किसका फंक्शन है, टाइम का कि डिस्प्लेसमेंट का, और वो हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि ये फोर्स टाइम का फंक्शन है। तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है कि फोर्स F इक्वल्स टू ma, तो वी कैन राइट दैट ma इक्वल्स टू 2t स्क्वायर, वी कैन राइट F equals to what, according to Newton's second law F equals to ma. So instead of F we can put the value as ma, where m is what, m is mass of the object and a is acceleration, and mass of the object is what, here mass of the object is what, 2 kg, mass m is what, 2 kg na, mass is what, 2 kg, 2a equals to 2t square, 2t square. These two and these two will be getting cancel out, ये 2a2 का हम लोग काट सकते हैं बोथ साइड रहने की वजह से। सो a हम लोगों को कितना मिला, a मिला t स्क्वायर, a इक्वल्स टू t स्क्वायर। ओके, a means what, acceleration, and acceleration is defined as the rate of change of velocity. Acceleration is what, acceleration is nothing but rate of change of velocity. So a can be written as dv dt, differentiation of velocity will be, with respect to time will be what, will be acceleration. अगर टाइम के साथ v का हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, अगर वेलोसिटी का डिफरेंशिएट करेंगे with respect to time, then we will get what, acceleration. So dv dt will be what, d dt of v will be t square. So here dv will be what, dv will be t square dt, t square dt. ओके, टाइम कितने तक कितना वेरी हो रहा है, टाइम t इक्वल्स टू 0 सेकंड से टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकंड में वेरी हो रहा है। यार इनिशियल पोजीशन में जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में था तो टाइम कितना था, टाइम इक्वल्स टू 0 सेकंड, इनिशियल में टाइम कितना था, 0 सेकंड। ओके वेट अ मिनट, टाइम कितना था, 0 सेकंड, इनिशियल पोजीशन में टाइम था 0 सेकंड और फाइनल पोजीशन में टाइम कितना हुआ, 2 सेकंड। So the lower limit of the variable time is 0 and the upper limit of the variable time is 2. So यहाँ पर dv का जो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा
velocity. So initial velocity when the object is raised will be 0 and the final velocity will take as v. and टाइम कितना वैरी हो रहा है, टाइम वैरी हो रहा है 0 से 2 तक. लोअर लिमिट विल बी 0 एंड अपर लिमिट विल बी 2. तो अगर dv का इंटीग्रेट करेंगे तो कितना मिलेगा, v मिलेगा. टी स्क्वायर डी का अगर हम लोग मतलब क्या बोलो, टी स्क्वायर डी का अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा टी क्यू बाई 3. टी क्यू बाई 3. ओके, वन थिंग इज देयर, यहाँ पे 0 से 2 मत लो, यहाँ पे एक काम करो 0 से t ले लो, मैग्नीट्यूड बाद में पुट करेंगे. 0 से t ले लो, 0 से t लेते हैं. यहाँ पे वेलोसिटी कहाँ से कहाँ डिफर कर रहा है, 0 से v. और लेट सपोज द टाइम कितना से कितना वैरी कर रहा है, 0 से t. लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज t. तो हम लोगों को कितना मिलेगा, टी क्यू बाई 3. वेलोसिटी मिल गया कितना, टी क्यू बाई 3. ओके, हम लोग जानते हैं कि अगर फोर्स F है, सॉरी फोर्स F है, ओके फोर्स F है और छोटा डिस्प्लेसमेंट dx है, देन द मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू छोटा डिस्प्लेसमेंट dx विल बी व्हाट, dw. ये हम लोग जानते हैं, dw इक्वल्स टू F इनटू dx. ओके, dw. फोर्स क्या है, फोर्स है 2t स्क्वायर ना. फोर्स इज व्हाट, फोर्स इज 2t स्क्वायर. यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, force equals to 2t square. So instead of writing force we can write 2t square, sorry 2t square. ओके, 2t square dx. देखो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, dx बाई dt इंटू dt. ये हम लोग लिख सकते हैं dx बाई dt इंटू dt. ये dt कैंसिल आउट होगा और अल्टीमेट वही रह जाएगा. तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं. वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट x को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा ना. सो d dt of x will be what, velocity. the rate of change of displacement will be called as what, velocity. तो यहाँ पे dw इक्वल टू 2t स्क्वायर टू t स्क्वायर. देखो यहाँ पे dx dt है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये कितना है, ये है dx dt. तो ये dx dt के मतलब प्लेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, dx dt इज नथिंग बट वेलोसिटी ना. dx dt इज नथिंग बट वेलोसिटी. और वेलोसिटी कितना मिला है हम लोगों को, टी क्यू बाई 3. वेलोसिटी कितना मिला, टी क्यू बाई 3. dx dt मीन्स v एंड v मीन्स टी क्यू बाई 3 dt. तो यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है. देखो अगर dw को इंटीग्रेट करेंगे 0 से w लेकर w तक तो हम लोगों को मिल जाएगा टोटल वर्क डन. अगर dw को 0 से w हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा टोटल वर्क डन, दैट इज w. dw को इंटीग्रेट करने से क्या मिलेगा, w. और यहाँ पे t वेरिएबल का लोअर लिमिट क्या है, t 0 से लेकर शुरू होकर 2 सेकंड तक जा रहा है. तो लोअर लिमिट ऑफ वेरिएबल t विल बी t इक्वल्स टू 0 एंड अपर लिमिट विल बी t इक्वल्स टू 2 सेकंड. थोड़ा हॉचपॉच हो जा रहा है तो ध्यान से देखना इस कैलकुलेशन को. तो यहाँ पे क्या होगा, लोअर लिमिट कितना आ रहा है, लोअर लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन इज 0 एंड अपर लिमिट विल बी 2/3 को हम लोग बाहर ले सकते हैं. ये 2 और ये 3 को हम लोग बाहर लिए हैं, ये जो 2 और ये जो 3 है उसको बाहर लेके टी स्क्वायर इंटू टी क्यू दैट इज टी टू दी पावर 5 dt. ये आ रहा है टी टू दी पावर 5 dt. टी टू दी पावर 5 dt का इंटीग्रेशन कितना होगा, टी टू दी पावर 6 बाई 6 2/3 टी टू दी पावर 6
by 6 t to the power, okay, let me write this properly, t to the power 6 t to the पावर 5 dt का इंटीग्रेशन कितना होगा, t to the power 6/6। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर इस टाइप का न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो इंटीग्रेशन आना चाहिए, लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज 2। सो ये सॉल्व करने से कितना मिलेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ना, सो 2/3 2 to the power 6, that means 2 to the power 5 32, 2 to the power 6 64/6 एंड लोअर लिमिट में तो जीरो है तो माइनस में वो जीरो हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट का 2 अगर t के जगह पुट करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 2 to the power 6 that is 64 divided by 6 and minus lower limit that is 0, so ultimate result will get what, 2 3s are 6, that will be 64 divided by 9, 64 divided by 9, and the unit will be joule because all the units are in SI unit, 64/9 joule, 64/9 जूल। तो वर्क डन हम लोगों को कितना मिले, 64/9 जूल। ओके, यहाँ पे अल्टीमेट रिजल्ट हम लोग लिख रहे हैं कि टोटल वर्क डन W विल बी 64/9 जूल। आई होप दिस न्यूमेरिकल इज क्लियर फॉर यू, तुम लोगों को शायद समझ आया होगा। ओके, तो आज तक इतना ही था आज के लिए, ठीक है। तो वर्कडन के इस टॉपिक के ऊपर मतलब वर्कडन बाय वेरिएबल फोर्स के ऊपर हम लोग 3 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। फर्दर लेक्चर में हम लोग और भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है तो हम लोग वर्कडन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे। मतलब नेक्स्ट लेक्चर जो भी आएगा वो आएगा फोर्स डिस्प्लेसमेंट का अगर कर्व दिया है, मतलब ग्राफ दिया है, सॉरी, फोर्स डिस्प्लेसमेंट का अगर ग्राफ दिया है तो उस ग्राफ को मतलब देख के और ग्राफ को कैलकुलेट करके कैसे हम लोग वर्क डन निकालेंगे वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके, गुड बाय।